بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر آج بھی متنازع مسئلہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے بھارت کو کوئی واک اوور نہیں دیا۔ بھارت نے جھوٹا آپریشن کرنے کی حماقت کی تو 27 فروری کا جواب یاد رکھے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم ذاتی گھر میں رہتے ہیں، ان کا کوئی کیمپ آفس نہیں۔ ماضی کے حکمرانوں نے عوام کا پیسہ شاہانہ انداز میں خرچ کیا اور عوام کے ٹیکس کی رقم پر عیاشی کی جاتی رہی۔ اپوزیشن کو تکلیف ہے کہ عمران خان کو غریبوں کا احساس کیوں ہے۔ اسٹیٹس کو توڑ کر ملک کی تقدیر بدل رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید کا ایوان میں اظہار خیال۔ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی بصیرت اور قیادت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ سابقہ حکومتوں نے IMF سے قرضے لیے۔ بدعنوانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ صحت کے شعبے کے لیے مزید وسائل مختص کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کسانوں کو سبسڈی اور سستے داموں کھاد اور بجلی فراہم کرے۔ قومی اسمبلی میں مختلف ارکان کا آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عام بحث میں اظہار خیال اور تجاویز۔ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس فری بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش۔ صحت کے شعبے کے لیے 124 ارب روپے مختص۔ رواں مالی سال میں صوبے کے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ جاری ہوگا۔ 27 اشیاء پر سیلز ٹیکس پر کمی کی تجویز۔ مجموعی اخراجات کا تخمینہ 923 ارب روپے۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 317 ارب روپے سے زیادہ۔ ثانوی تعلیم کے لیے بجٹ میں 152 ارب روپے مختص۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے بجٹ پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا عدم قرار دے دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے کی استدعا منظور۔ 3 جائیدادوں کے حوالے سے لینڈ ریونیو کمشنر کو معاملہ بھجوانے کا حکم۔ لینڈ ریونیو کمشنر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں سے جائیدادوں کی خرید کے ذرائع سے متعلق پوچھے گا۔ FBR تحقیقات کے بعد رپورٹ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی فلاح و بہبود حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہیلتھ ورکرز اب ہیلپ لائن کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں میڈیا بریفنگ۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4944 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,65,062 تک جا پہنچی۔ مزید 136 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,229 جاں بحق، 61,383 صحت یاب۔ مانسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصان سے بچاؤ کے لیے اقدامات وقت کی ضرورت ہیں۔ اربن فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کرنا ہوں گے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں میں تعاون اہم ہے۔ دوسرے بڑے شہروں میں بھی انتظامیہ کو بروقت اقدامات کرنا ہوں گے۔ چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا پری مانسون کانفرنس سے خطاب۔ بیرون ملک ملازمتوں سے محروم ہو کر وطن لوٹنے والے پاکستانی محنت کشوں کو روزگار دینے کے اقدامات۔ خصوصی پورٹل تیار کر لیا گیا۔ اوورسیز پاکستانی روزگار کے اہل ہو سکیں گے۔ معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی۔ شوپیاں اور پلوامہ کے اضلاع میں مزید 6 نوجوان شہید کر دیے گئے۔ 2 روز کے دوران مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 86 لاکھ ہو گئی۔ 4,57,000 سے زیادد مریض ہلاک، 45,60,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 22,63,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,20,688 جان کی بازی ہار گئے۔ چین اور بھارت کے درمیان میجر جنرل سطح کی مذاکرات۔ چین نے بھارت کے 10 فوجی رہا کر دیے۔ رہائی پانے والوں میں 1 لیفٹیننٹ کرنل اور 2 میجر بھی شامل ہیں۔
دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپ میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک اور 76 زخمی ہوئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹ میں 1 ماہ کی توسیع، 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹس میں 31 جولائی تک توسیع، کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا۔ خالی اسٹیڈیمز میں اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے، ایٹلیٹیکو میڈرڈ کی اوساسونا کو 5-0 سے شکست، چوتھی پوزیشن حاصل کر لی۔ ایک اور میچ میں ڈیپورٹو الاویر نے ریال سوسیڈاد کو 2 گول سے ہرا دیا۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں، ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں۔ شیر دل مسیحا ہو، سی رہے ہو سب کھاؤ، تم ہمارے محسن ہو، جان لیوا دشمن سے لڑ رہے ہو تم تنہا، رات ہو بھلے دن ہو، تم ہمارے محسن ہو۔ شیر دل مسیحا ہو، بھول کر تم اپنے غم اور دکھ عزیزوں کے، پاس ہو مریضوں کے، تم ہمارے چارہ گر، درد کی دوا ہو تم، خوف کی شفا ہو تم، امن کی قبا ہو تم، چین کی ردا ہو تم۔ ہم دعائیں کرتے ہیں تم بہت جزا پاؤ، شیر دل مسیحا ہو۔ سر پہ تم کفن باندھے لڑ رہے ہو سب کی جنگ، اور سب محاذوں میں سب سے آگے تم ہی ہو، توپ ہے نہ کوئی تیر، لڑ رہے ہو بے شمشیر، تم ہمارا لشکر ہو، تم نشان حیدر ہو، رب کرے لڑائی میں کامیاب ہو جاؤ، شیر دل مسیحا ہو۔ دیس کے جواں بیٹو، جوش کم نہ ہونے دو، سارے درد مندوں کو، سب خدا کے بندوں کو درد کی دوا بانٹو، قوم کو نہ رونے دو، تم ہمارے ہیرو ہو، آنے والی نسلیں سب تم کو یاد رکھیں گی، عشق کے نصابوں میں، دیس کی کتابوں میں آئے گا تمہارا نام، کیونکہ تم نے ہم سب کی
जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहाओ, शेर दिल मसीहाओ। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على ہمارے بہت زیادہ مشرقی اوڑھنے پہننے کا جو رواج ہے، جو ٹرینڈز رہے ہیں صدیوں سے، اس میں ایک چیز کبھی بھی آؤٹ آف فیشن نہیں ہوتی، اور وہ ہے خصا. جو کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی ماڈرن اور ویسٹرن انفلوئنس، تو جناب ایسٹرن ان ہے تو 60s ان ہے کہ 90s آؤٹ ہے. اس طرح کی جتنی بھی گفتگو فیشن ڈیزائنرز اور فیشن گروز اور کنسلٹنٹس آپ کو بیٹھ کے کریں، جب بات خصوں کی آتی ہے نا، سارے کہتے ہیں ہاں جی خصے تو ہر وقت ان رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ان اور کیا آؤٹ ہے، یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آج فاطمہ جدون. گڈ مارننگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ویسے خصے کبھی آؤٹ نہیں؟ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہے نا، یہ کیا چکر ہے؟ خصے آپ دیکھیں تو ہمارے مغل دور سے چل رہے ہیں، اور جہانگیر جو ہمارے بادشاہ تھے انہوں نے اس کا ٹرینڈ شروع کیا. اور مزے کی چیز ہے کہ اس زمانے میں جو خصے ہیں نا، وہ بڑے ہی رویل لوگوں کے لیے تھے. عام جو لوگ ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. اچھا، یعنی خصہ جو ہے وہ ایک بڑا شاہانہ شاہی اس میں ایک آتا ہے. بالکل، کیونکہ توصیف اس وقت جو جوتے ہیں ان پہ ریئل جیم سٹونز تھے، گولڈ کی تار سے، سلور کی تار سے بنایا جاتا تھا. لیدر بڑا فائن یوز ہوتا تھا، بڑا مہنگا جوتا تھا، اور مطلب اس کو عام لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو بہت ہی زیادہ
सस्ते सॉल्यूशंस भी हैं और महंगे सॉल्यूशंस भी हैं, महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं। लेकिन जो ट्रेंड में ये आया ना फ्रॉम पास्ट 3 to 4 ईयर, ये जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया है, और मैंने मर्दों में इसका इतना फैशन नहीं देखा। ठीक है, फीमेल्स बहुत ज्यादा यूज कर रही है, क्योंकि मर्दों के शायद ट्रेंड बहुत ज्यादा ईस्टर्न नहीं। आपने देखा मर्दों के ट्रेंड वेस्टर्न की तरफ बड़े ज्यादा है, और हमारे ईस्टर्न ईस्टर्न में ज्यादा बड़े। और कोई भी परफेक्ट ईस्टर्न वार्डरोब है ना, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। ठीक है, मतलब आपके पास अच्छे झुमके जरूर होने चाहिए, एक अच्छी चादर जरूर होनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी टाइप, ठीक है, जिस तरह आपकी मेरी हो गई, ठीक है। खूबसूरत। मतलब एम्ब्रॉयडरी वाली जो चादरें प्रॉपर जो चादर लेने की शौकीन आंटियां है, वो जानती होंगी कि पश्मीना, शातूश, ये वो चीजें हैं जो बड़ी रॉयल चीजों में आती हैं, बिल्कुल। और उस जमाने में क्या, अभी भी अगर ओरिजिनल शातूश है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सही, ठीक है, आप यकीन कर सकते हैं शातूश के छिलके की भी शॉल है। अरे वाह, वो छिलका नहीं होगी, वो छिलका अफोर्ड करना भी बड़ा मुश्किल है। असल शातूश तो बड़े शाही लोग अफोर्ड करते होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इसी तरह खुस्से का जो एक वो ट्रेंड है कि पहले जमाने में खुस्सा, मैंने आपको बताया ना, जैसा जहांगीर और ये हमारे सारे बादशाह पहनते थे, फिर ये हमारे कॉमनर्स ने भी पहनना शुरू कर दिए। उनको सिल्क के धागों की कढ़ाइयाँ और प्लेन सिल्क। फिर ये बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड चाइना से भी आया। अच्छा। चाइना में इसको वुडन खुस्से और उनका ट्रेंड आता था, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल नहीं था। आप देखें लकड़ी का जूता कभी भी बड़ा कंफर्टेबल नहीं हो सकता। हाँ, लकड़ी के जूते उधर हॉलैंड में भी पहना जाता है, और लकड़ी के जूते उधर डेकोरेटिव भी हैं, लेकिन उनको एक्चुअली पहना भी जाता है, लेकिन चाइना के अंदर भी। चाइना में खुशों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ तस्वीरें हमारे पास। बिल्कुल, खुशों की हमारे पास तस्वीरें। खाली कहना ये चाहूंगी कि इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे, हम साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देंगे कि क्या है। लेकिन अब जो खुशे हैं हमारे पास देख रहे हैं, क्योंकि जो पहली पिक्चर है वो हमारे पास आ रही है, ये बड़ा बड़ा कैजुअल सा खुस्सा है। माया अली ने इनको अपने ट्रेंडी एक ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्यूजन का जो एक उनका फ्रॉक था उसके साथ पहने। ठीक है, पहनने को इसके साथ आप अपने स्नीकर्स भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने लुक को एकदम ईस्टर्न करना है तो प्लेन ब्लैक जो खुस्सा है वो बहुत आराम से आप कैरी कर सकते हैं, और तकरीबन आपकी वार्डरोब मैक्सिमम वार्डरोब के साथ अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक सेफ कलर होता ब्लैक इज द सेफेस्ट कलर। बिल्कुल। इसमें जो आजकल हमारे पास जिन लड़कियों को स्नीकर्स नहीं पसंद है, उनके पास प्लेन खुशों की कलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और उसमें बेसिक 3-4 कलर अगर आपके हो ना, मैरून हो जाए, ब्लैक हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, बेज के अंदर एक हो जाए, तो मैरून, ब्लैक और बेज, ये 3 अगर हैं आप, 3 जगह ये वही वाले होंगे जो जैसे हम अपने कहते हैं ना कि आप मर्द हजरात के पास 3-4 कलर्स के जूते अगर फिक्स हैं तो उनको आप मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। Exactly. इसी तरह ये खुशों के कलर्स के साथ। बिल्कुल ठीक है जी, अगली तस्वीर पे चलते हैं। अच्छा जी, ये हो गए जो बहुत हमारे सही, जैसे आप ईद का कोई ओकेजन है या कोई लाइट का ऐसा ओकेजन है, तो आप ये देखिए प्लेन खुस्सा था, लेकिन उसमें बड़ी हल्की सी एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। तो वो अगर आपके कपड़ों में हल्की सी भी गोल्ड की तार है तो ये अच्छा मिक्स वाले जो इस टाइप के जो ड्रेस के साथ कैरी करना है वो प्रॉपर ईस्टर्न लुक आती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ईस्टर्न लुक देनी है अपनी, और आपको सबसे बड़ी चीज रिस्क नहीं लेना। फैशन में भी तो रिस्क है ना, तो बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ रिस्क के बगैर फैशन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये उन लोगों के लिए था जो सेफेस्ट प्ले करना था। बिल्कुल ठीक है, कि जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर का आप खुस्सा पहन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। साथ अगली तस्वीरों पे चलते हैं। थर्ड पिक्चर है जो हमारी आयजा खान की। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपने बहुत ही नियॉन सा और बहुत ही एम्बेलिश्ड खुस्सा लेना। बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने बहुत ज्यादा एकदम हॉट पिंक खुस्सा लिया है। अब हॉट पिंक खुस्से के साथ सेफेस्ट है कि आप इसको ऑफ वाइट्स में चले जाए अपने ड्रेस को, फिर आपका देखिए आपका जूता स्टैंड आउट करे। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। और इसमें उलट हो गया, ड्रेस जो है वो बड़ा जरा ब्राइट कलर का है और खुस्सा जो है वो एकदम से आपने बिल्कुल खुस्सा हमने ऑफ वाइट दे दिया। लेकिन ये चीज का ध्यान रखें कि क्योंकि आपका जो ड्रेस है ये थोड़ा किसी ओकेजन टाइप का ड्रेस है, और उन्होंने परांदा भी इसके साथ बड़ा ही ईस्टर्न लुक की दी है, तो उन्होंने खुस्से को प्लेन व्हाइट में नहीं किया, व्हाइट के ऊपर व्हाइट ही एम्बेलिशमेंट है। बड़ी खूबसूरत वैरायटी है खुस्सों में भी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ कि शेप्स भी बड़ी नई नई बहुत चेंज हो रही, बहुत ज्यादा शेप चेंज हो रही है। और मजे की चीज ये है कि सब वो जो हमारी ज्वेलरी के पीसेस थे वो हमारे खुस्सों पे भी आ गए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हमारे पास तस्वीरें पता लगा है कि काफी ज्यादा है, इसलिए हम तेज जरा तस्वीरों को लेकर चलेंगे। हरीम फारूक ने इनको बहुत ज्यादा सेफेस्ट प्ले किया, और उन्होंने उसको सेफ प्ले करने के लिए
अपने खुस्से को भी वाइट ही रखा और ड्रेस को भी वाइट ही रखा। लेकिन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो खुस्सा है, आप चेक करें, इस पे एम्बेलिशमेंट बहुत खूबसूरत है, सारी पर्ल्स की एम्बेलिशमेंट है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी टेसल्स वाली एम्बेलिशमेंट है। तो मतलब अगर आप अच्छा जूता भी पहनना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एम्बेलिश हो और ज्वेलरी ना हो, तो खुस्से में एम्बेलिशमेंट जितनी ज्यादा होगी, मतलब ज्वेलरी आप खुद ना पहने, खुस्से को पहना दे। क्या बात की है। अच्छा जी, ये भी बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, ये हमारा पिंक के साथ है और इन्होंने भी एम्बेलिशमेंट चिकनकारी के एक प्लेन कुर्ते के साथ, एक सिंपल सा जब आप कुर्ता अपना खुस्सा रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि कहीं पे भी बहुत ओवर ना हो। अगर वो ही वाली बात है कि लेस इज मोर वाली कहानी है तौसीफ। अगर आप खुस्सा प्लेन रख रहे हैं तो फिर ड्रेस में एम्बेलिशमेंट कर लें। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि कई दफा जो आपकी मिसाल के तौर पे, वैसे तो खवातीन के खुस्सों पे आज हम बात करें, लेकिन मर्दों के खुस्सों की अगर हम बात करें तो शादी ब्याह या मेहंदी की वार्डरोब में दूल्हा जो है वो जो वेस्ट कोट पहन रहा है उसी के कपड़े का ऑर्डर पे कस्टमाइज खुस्से बन रहे हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। बहुत अच्छा। खवातीन को मैं देख रहा हूँ कि अगर आप उनके जो पाउचेज हैं या जो दुपट्टे का मटेरियल है वो आप दे देते हैं, तो अपने हैंड बैग पे या अपने खुस्से पे, और अब तो मेरा ख्याल है कि हर छोटे बड़े शहर के अंदर खुस्सा बनाने वाले ये ऑर्डर पे आपको खुस्सा बना के देते हैं। तो ब्रांड्स हैं खुस्सों के, खुस्सों के ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर दिखाएंगे कि सबा कमर ने अपनी एकदम स्टेटमेंट को चेंज करना था, लेकिन जो इस टाइप के जो प्लेन हमारे खुस्से हैं सिल्क के, जो आप नोट करेंगे वो खुस्सा है जो हम अरसे से देखते आ रहे हैं जी। जो बेसिक खुस्सा है, जो लेदर का खुस्सा है, लेकिन क्योंकि इनके उसमें बहुत हल्की वाली तार थी और क्योंकि इनका ड्रेस स्क्रीन पे प्रॉपर नजर आ रहा होगा कि नीचे इनके दामन पे बहुत हैवी वर्क है, वही वाली चीज कि जब आप बहुत ज्यादा प्ले करते हो अपनी शर्ट के साथ और फ्लेयर्स के साथ, तो फिर खुस्से को कम ही उसमें रहना चाहिए, वरना आपका ड्रेस भी आप ऐसी लगोगे कि बस सारा कुछ आज ही पहन लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये क्या है? ब्लैक का भी हमने टच दिया और जी और ये जो है ये हमारा वेडिंग वेयर है, माहिरा खान ने जो पहना हुआ है, कि बहुत ज्यादा फ्लेयर दी है, लेकिन उन्होंने फ्लेयर के साथ खेला है, लेकिन तौसीफ उनका जो ड्रेस था वो बहुत प्लेन था, तो उनका खुस्सा जो है बहुत खूबसूरत कुंदन के काम वाला है। आजकल तो ये लास्ट पिक्चर थी, कहना ये चाहूंगी कि जो हमारे आजकल के जो खुस्से हैं उन पे पर्ल्स का काम भी है, कुंदन का काम भी है, इवन कोरा दबका, मतलब सब कुछ है जो हमारे दुपट्टों पे और इन पे काम होता है। और वो जो हीरे जवाहरात वाली आप बात कर रही थी, तो आज जो आपने खुस्सा पहन रखा है वो कुंदन का, वो कुंदन। अच्छा, तो मुझे तो डायमंड्स भी नजर आ रहे थे। बिल्कुल, ये कुंदन वो जो पुरानी जो एक हमारी ज्वेलरी यूज होती थी उसका। अब देखें, मैंने अगर प्लेन ब्लैक ड्रेस पहना है और शॉल के अंदर बेज था और बहुत ज्यादा मल्टी कलर ज्यादा मेरे शॉल में थे, तो आई जस्ट वांटेड के ड्रेस जो मेरा खुस्सा है वो एम्बेलिश्ड भी हो लेकिन कलरफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मेरी शॉल प्रोमिनेंट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि उसके अंदर से वो जो उसके जो भी डायमंड के जो स्पार्क्स है वो निकल के आ रहे हैं, यानी कि वो प्रोमिनेंस ले रहा है पूरी वार्डरोब, खुस्सा जो है वो निकल के आ रहा है। अगर दुपट्टा भी, शॉल भी, शलवार कमीज भी, खुस्सा भी, सब कुछ भी ऐसा होगा तो वो लगेगा वही जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एक ही दिन सारा कुछ आपने पहन लिया। अब अगर इस ड्रेस के साथ मैं प्लेन ब्लैक खुस्सा पहन लेती तो ये मेरा थोड़ा सा बैठ जाता ड्रेस और मैं इधर के लिए सूटेबल ना होती। हाँ, अगर मैं किसी एक नॉर्मल से किसी लंच पे जा रही हूँ तो आई कैन वेयर ब्लैक खुस्सा विद इट, लेकिन अगर मैं डिनर पे जाऊंगी तो मैं इसके साथ अपना यही वाले खुस्से पहन। हमें दिन और रात का फर्क देखना पड़ता है। तो दिन और रात का पिछली तरह बता दें कि फर्क ये है कि दिन में आप थोड़ा सा मतलब कम, बहुत ज्यादा, बिल्कुल कम आप उसमें रखेंगे, आप एकदम अपने आप को एकदम स्टैंड आउट कराने की कोशिश में सब कुछ नहीं कर लेंगे। एग्जैक्टली। वो ट्रेनर काशिफ और मैं अक्सर जिम और उसके अंदर ये बात करते हैं कि शोखे नहीं होना, बिल्कुल थोड़ा सा कम शोखा हो जाए, दिन में कम शोखा, बिल्कुल दिन में कम शोखा होना, रात में थोड़ा सा शोखा हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा रात में हम लोग दिन से सारा दिन की थकावट खत्म, वो अर्ज पर होती है हमारी जो थकावट है ना, अच्छा तो हमें होता है कि हाँ तैयारी के साथ। अब दिन की शादियां भी बहुत ज्यादा आ रही है, तो उनमें भी आपने बैलेंस तो यही रखना है कि दिन में कम, थोड़ा सा आपने मतलब कलर्स को थोड़ा कम रखना है, रात में कलर। थैंक यू सो मच। मजे का सेगमेंट था आज, खुशियों के हवाले से अच्छे हमें आइडियाज भी मिले, और मेरा ख्याल है कि जो मेन टेक अवे था वो ये कि अगर खुस्सा आपका हैवी है तो ड्रेस जरा लो टोन में, और अगर ड्रेस हैवी है तो खुस्सा
ذرا تھوڑا سا ہلکا ہاتھ والا رکھ کے. ہیو اے گریٹ ڈے. تھینک یو سو مچ. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک. مرزا یاسین بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد, اور مزاح اور ہیومر اس حوالے سے بات ہوگی. اور ان کا کہنا یہ, بلکہ ان کی کتاب کا جو ایک طرح سے ٹائٹل اور اسپیلنگ پچ بھی یہ ہے کہ نئے دور کا نیا مزاح. تو بیگ صاحب, کیا مطلب ہر دور کا نیا مزاح ہوتا ہے؟ تو وہ پرانا مزاح پرانا ہو جاتا ہے, تو ہر دور کو ایک نیا سٹائل چاہیے ہوتا ہے, پرانا سٹائل آبسولیٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہر 20 برس کے بعد جو نیا مزاح آئے گا تو پرانا اولڈ ہو جائے گا. اس سین کیا ہے؟ نیا مزاح اور پرانا مزاح میں فرق کیا ہے؟ یہ ہم ایک سب سے جانیں گے. بریک کے بعد رہی میرے ساتھ. ابھی ملتے ہیں رائزنگ پاکستان میں. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آج آپ کی ملاقات میں نے کروانی ہے مرزا یاسین بیگ صاحب سے, جو کہ ایک مزاح نگار ہیں, صحافی ہیں. زندگی کا بہت سا حصہ پاکستان میں گزارا ہے, لیکن اب پچھلے تقریباً 18-20 برس سے کینیڈا میں مقیم ہیں اور وہاں پہ صحافت بھی کر رہے ہیں, مزاح بھی لکھ رہے ہیں. لیکن وہاں جا کر ان کے مزاح کا انداز بھی کچھ بدلا, اس لیے کہ جب دیسی بیرون ملک جاتے ہیں تو اس ہجر کا اپنا ایک دکھ لیے ہوتا ہے, لیکن ان کے اس مزاح میں بھی اس ہجر کے دکھ کے ساتھ خوبصورت سی طنز کی آمیزش بھی ہمیں نظر آتی ہے. آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیز کہ بیگ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے. گڈ مارننگ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کی اس ملاقات کے ساتھ, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں میری موجودگی کی توثیق ہو گئی ہے. عنایت آپ کی, عنایت آپ کی. آپ کی جو کتاب ہے پارچے, جی جی, اس کا ایک سب حاشیہ ٹائٹل ہے نئے دور کا نیا مزاح. جی, سب سے پہلے تو میری رہنمائی فرمائیے کہ نئے دور کا نیا مزاح, تو مطلب اس کا مطلب ہے مزاح ہر دور میں اس کا انداز بدلتا رہتا ہے اور یہ بدلنا چاہیے. بالکل جناب. جب آپ کی ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, اس سے آپ کا کلچر بدل رہا ہے, آپ کی معاشرت بدل رہی ہے, رہن سہن بدل رہے ہیں, نئی ایجادات آپ استعمال کر رہے ہیں, تو اس سے جو ایک معاشرتی سیٹ اپ ہوتا ہے, آپ کا جو ذہن بدلتا ہے, تو مزاح اس کی عکاسی کرتا ہے, اسی پر طنز کرتا ہے, اسی پر جو ہے شگفتہ جملے لکھتا ہے. تو جو پچھلا مزاح ہوتا ہے وہ در حقیقت ان میں جن میں ورتھ ہوتی ہے وہ کلاسیکل مزاح میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. ایسا ایسا وہ ہمیں پھر اولڈ کلاسک بن رہا ہے. اور جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو وہ ماضی کی چیزیں آپ کے سامنے آیا ہوتی ہیں, اور جب آج کا مزاح پڑھ رہے ہیں تو آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکل سینیریو کیا ہے, ٹھیک ہے نا, دوسری فنون لطیفہ میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے ڈریسز میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے کلچر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کی زبان پہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں زبان بھی تو بدلتی رہتی ہے نا, نئے الفاظ استعمال, وہی مزاح کر رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ مزاح میں جو شعراء ہیں وہ بھی, یا آپ جیسے نثر نگار, وہ بھی اب جو ہماری ٹیکنالوجی مثلاً سیلفی کا لفظ, جی جی, اب سیلفی کا لفظ آپ کو اکثر ٹویٹر کا لفظ, ہاں ہے نا, فیس بک کا لفظ آپ کو مزاح میں, شاعری میں بھی اور نثر میں بھی نظر آتا ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے فکائیے لکھے سارے نئے موضوعات پر, سیلفی پہ بھی میں نے لکھا ہے. اور میں ہمیشہ, اب دیکھیے مزاح کا اب ایک رنگ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اب لوگ اتنے بڑے بڑے مضامین نہیں پڑھتے. پہلے جو ہمارے کلاسیکل لکھنے والے تھے مزاح اور طنز, وہ 10-10 صفحے کا لکھتے تھے. اب دور نہیں ہے, اب میں لکھتا ہوں آدھا صفحے کا, 1 صفحے کا, بہت میں لکھوں گا 1.5 صفحے کا, تاکہ آپ اگر کسی وقت کتاب کھولیں یا آپ میرا کہیں کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس 5 منٹ ہے, آپ نے پڑھ لیا, آپ نے انجوائے کر لیا.
बल्कि आपके तो वन लाइनर्स भी हैं। मेरे वन लाइनर्स भी हैं और ये मेरी बड़ी मकबूलियत है। फेसबुक से मैं पिछले 18 साल से 19 साल से वहां पर हूं। फेसबुक के जरिए मैं अपने पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर मेरा मतलब सुबह उठता हूं, शाम होती है, रात होती है, रहता वहां हूं, लेकिन दिल जो है पाकिस्तान के साथ। आपकी सुबह होती है, हमारी रात होती है। बिल्कुल, जिस वक्त आपका यहाँ शो चल रहा होता है, हम रात होती है हमारे, वहाँ रात होती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम पीटीवी ग्लोबल पे फिर वहाँ की सुबह के मुताबिक अपने शो को रीरन भी करते हैं। अच्छा बेग साहब, ये बताइए कि ये जो आपने जो कहा कि कवालत मुख्तसर हुई है, नसर की थी, इसकी बुनियादी तौर पर वजह ये कि इंसान के पास वो रिटेंशन पावर, हम कहते बस जल्दी जल्दी अगली चीज। तो क्या खुल के लिखने का जो अपना लुत्फ था 15 सफ़ों में एक बार उसको कहना, वो फिर लुत्फ अब जाता रहा? नहीं, जो वो उसके लिखने वाले भी अपने हैं। अब मेरे पास जब कम वक्त है, बहुत ही मुख्तसर वक्त है, मैंने वन लाइनर लिख ली, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा वक्त मिला, मैंने थोड़ा सा एक डेढ़ सफ़े का लिख दिया। मैं पहले आपको टॉपिक बताता हूँ, आप टॉपिक से ही खुश होंगे। बिल्कुल ठीक है। पंखे ना होते तो हमारी हवा खराब होती। स्त्री और बीवी के बगैर गुजारा नहीं है। चप्पल दिल के बाद सबसे ज्यादा चुराई जाने वाली शय। वाह। मेज को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कुर्सी तो होती है, लेकिन काम मेज भी तो साथ काम मेज भी कर रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल। अंगूठी से मजे, कंगी बड़ी चंगी, ग्लास की क्लास, चश्मा या करिश्मा, झाड़ू मारना आर्ट और झाड़ू फेरना क्राइम। थैंक यू सो मच, बहुत लुत्फ आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनायत मुझे भी बड़ा लुत्फ आया, बहुत अच्छा लगा आपके शो में शरीक होकर। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोलते हैं और इतना स्पॉन्टेनियस और तेज रफ्तारी से ये लुत्फ आता है। इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है आपसे इजाजत चाहने का। मिर्जा यासीन बेग साहब की बातें आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। नाज़रीन, आपको गिलगित बल्तिस्तान असेंबली लेकर चलते हैं, जहां गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर खजाना 2020-21 का बजट पेश कर रहे हैं। यकीनी बनाया जाएगा करप्शन का खात्मा करके वसाइल और मुलाजमतों की तकसीम में मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम से किए गए वादों की तकमील में कामयाब हो चुकी है। आज सरकारी इदारों में करप्शन का खात्मा हो चुका है, हर काम में शफाफियत लाई जा चुकी है और हर सतह पर फैसला साजी के अमल में मेरिट को मलवज़ खातिर रखा जा रहा है। बुनियादी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो रही है। यकसा इलाकाई तरक्की और कम वसीला व महरूम तबकात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। जनाब स्पीकर, मंदरजा बाला अहदाफ के हुसूल के लिए अवामी फलाही और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे तश्कील दिए गए हैं, जिसमें बेसहारा, गरीब और माजूर अफराद के लिए इमदाद, बेघर अफराद के लिए घरों की फराहमी के लिए छोटे कर्जाजात की फराहमी, दही सड़कों की तामीर, बिजली की बिला तातुल फराहमी, ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात और
पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों और बेवा ख्वातीन को कारोबार के लिए वज़ीर-ए-आला प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जे की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद किया गया है। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता अदवार की तरह साल 2019-20 में भी मंदरजा बाला अहदाफ के हुसूल के लिए मुख्तलिफ तरजीहात मुकर्रर की गई थी, जिन पर फरवरी 2020 तक कामयाबी के साथ अमल दरामद हो रहा था। ताहम मुल्क अजीज के दूसरे हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना वबा फैलने की वजह से हमने जो तरजीहात मुकर्रर की थी उनके हुसूल में शदीद मुश्किलात हायल हो गई, जो कि ताहाल जारी हैं। माली साल 2019-20 के दौरान इस मोजी मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए हुकूमत को पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तवील लॉकडाउन करना पड़ा, जिसके मंदरजा झेल असरात जाहिर हुए। गैर तरक्याती बजट, गैर मुतवक्का अखराजात के इजाफे से तरजीहात का मुतासिर होना, तमाम कारोबारी सरगर्मियों का मुतासिर होना, तरक्याती मनसूबों की बंदिश, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू के हुसूल में दुश्वारी, सियाहत और मादनियात के शोबों से वाबस्ता अफराद की बेरोजगारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने 5 साला दौर में सूबाई हुकूमत के वसाइल की बेहतर निगरानी करते हुए इंतहाई जरूरत और ज़ाब्ते के तहत अखराजात किए हैं और कोशिश की है कि अखराजात करते वक्त किफायतशारी को मलहज़े हाजिर रखें, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान ने अपने सेक्रेटेरिएट की ज़रूरियात के लिए बजट 2020-21 में रज़ाकाराना तौर पर 20% कटौती की। जावेद साहब और हमारे जो मिनिस्टर है एक्साइज टैक्सेशन, वो दोनों जाके जो हमारा पोजीशन के नाराज अरकान बाहर गए उनको मनवा के ले आए। ये बजट सेशन है, अभी बजट सेशन में उनका होना जरूरी है। जनाब स्पीकर, खान साहब और जावेद साहब दोनों। ताहम मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत ने अल्लाह के फजल व करम से इन नागहानी आफात का डट कर मुकाबला किया और अपने महदूद वसाइल में रहते हुए ठोस इकदामात के जरिए इस मोजी मर्ज को न सिर्फ फैलने से रोकने में कामयाब हो गए, बल्कि इससे मुतासरा शोबे व अफराद की बहाली के लिए ठोस इकदामात भी किए गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज गिलगित बल्तिस्तान को मुल्क के दूसरे सूबों की निस्बत कम जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए बरवक्त इकदामात के मरहून मिन्नत है। जनाब स्पीकर, मैं इस मोज़ी ज़बान में बजट 2020-21 पेश करने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 5 साला कारकर्दगी के चंद वाज़े नमूने इस मोज़ी ज़बान में पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक टूटी फूटी और इस्लाहात से आ रही एक हुकूमती ढांचा मिला था, जिसको दुरुस्त सिमत में डालने के लिए हमने सिर्फ अनथक मेहनत की है, बल्कि हुकूमती शोबों में बेमिसाल इस्लाहात को भी मुतारिफ करवाया है। इनमें से कुछ ऐसी इस्लाहात भी हैं जो कि दूसरी सूबाई हुकूमतों ने भी अपनाया है। इन इस्लाहात की तफसील कुछ यूं है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क़याम। इस अमर से मोज़ी ज़बान बाखूबी वाकिफ है कि गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन गिलगित और स्कर्दू शहर कचरा कुंडियों का मस्कन बन गए थे। हर तरफ कचरा और बदबू का राज था, जिसकी वजह से अनगिनत बीमारियां फैल रही थी। इनका इदराक करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वेस्ट मैनेजमेंट का क़याम अमल में लाकर गिलगित बल्तिस्तान में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया। इससे न सिर्फ साफ माहौल बेहतर हुआ, बल्कि सैर और सियाहत के गर्ज से आने वालों के लिए एक अच्छे तासुर का जरिया भी बन गया। अरसे दराज से महकमा वर्क्स एंड वाटर एंड पावर में RTE के नाम से एक फौज जफरमोज था। इनको वक्त पे तनख्वाह न मिलने की वजह से न सिर्फ वो खुद मसाइल का शिकार थे, बल्कि आखिरी वक्त में पानी और बिजली के निज़ाम के ऊपर भी असरअंदाज होकर पूरी आबादी को परेशानी में मुब्तला करते थे। मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत ने इनकी जायज मजबूरियों का एहसास करते हुए इनके लिए न सिर्फ 12,000 असामियों को तख्लीक करवाया, बल्कि इनकी मुलाजमतों को इन तख्लीक शुदा असामियों पर मुस्तकिल भी किया। शोबा सेहत, जो कि हमारी हुकूमत आने से पहले बदहाली का शिकार था, को खास तवज्जो देते हुए इसकी बेहतरी के लिए न सिर्फ इस्लाहात की, बल्कि डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के दरीना गिलगित बल्तिस्तान का माली साल बजट 2020-21 का बजट पेश किया जा रहा है। सूबाई वजीर खजाना औरंगजेब खान बजट पेश कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए।
आप देख रहे हैं टुमारो टुडे, DW का साइंस शो। आगे आ रहा है कॉन्स्टेंस झील के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात, तारीखदान माजी में झांक रहे हैं। मेक्सिको में एक मौजूद समंदरी काई से मकानात बना रहा है और मालूम करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्लास्टिक कैसे बनाई जा सकती है। समंदर के किनारे 10 किलोमीटर में बिखरे हुए 170 संगीत टुकड़े और चट्टाने हजारों बरस से मौजूद थे, लेकिन किसी की तवज्जो इन पर मबजूल न हुई और ये कॉन्स्टेंस झील के पानियों में मदगम होते रहे। ये झील वस्ती यूरोप में वाक़ है। इनसे इंसानी कोशिश से तामीर करदा एक काबिल जिक्र यादगार बनाई गई थी। बताया जाता है कि इस यादगार की तामीर में 1,20,000 टन पत्थर इस्तेमाल हुआ है। करीबन इतना ही पत्थर कोलोंज के गिरजाघर की तामीर में भी इस्तेमाल हुआ था। अगर एक पत्थर का औसत वजन 2 किलो हो तो झील पर मौजूद इन आसार का वजन 60 मिलियन टन होगा। आज इस काम को करने के लिए 8,000 ट्रक चाहिए होंगे जो ये पत्थर मतलूबा मकाम तक पहुंचा सकें। ताज़ा तरीन तहकीकात के मुताबिक इस जमाने में ये पत्थर इंसानों ने पहुंचाए थे। ये यादगार कब और क्यों तामीर की गई थी, इस बारे में तहकीकात जारी हैं। 2019 के मौसम गर्मा में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने कॉन्स्टेंस झील पर खुदाई का एक मुख्तसर यूनिट लगाया। इनका मकसद ये जानना था कि मज़कूरा यादगार कब बनाई गई थी। बर्न यूनिवर्सिटी के माहिर अर्जियात एंसल मट्टी और इनकी टीम अर्जियाती खुदाई के माहिर हैं। वो लोग झील की तह से खुदाई करके पत्थरों के नमूने हासिल करना चाहते हैं ताकि इनसे इस यादगार के वक्त तामीर का अंदाजा कर सकें। पहला काम रिग लगाना है, फिर उसे मतलूबा मकाम तक खुदाई के लिए GPS की मदद से ले जाना होगा। माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन अर्जियात का मजमूई इल्म इस मामले में काफी साबित होगा। मेरे ख्याल में खुदाई करके हम इन आसार की उम्र का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। क्या ये वाकई जमाना कबल तारीख का हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या ये धात के जमाने में बनाया गया था या फिर पत्थर के जमाने में? इस टीम को तवक्का है कि पत्थरों के गिर्द जमी तय की मदद से जमाने तामीर का तखमीना लगाना मुमकिन होगा। हम खुदाई के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जहां हमें ज्यादा से ज्यादा तह मिल सके ताकि इन तहों के जमने के वक्त का अंदाजा हो सके। साइंसदानों ने इस मकाम का तयन करने के लिए जमीन के अंदर मार करने वाला रेडार इस्तेमाल किया है। उन्होंने वहां मौजूद तय बर तय पत्थरों की निशानदेही की है। अगर मुहक्किकीन इस यादगार की उम्र का अंदाजा एक खुदाई के नमूने से ही लगा सकें तो मजीद खुदाई से बचा जा सकता है। इस तजुर्बे का बुनियादी औजार प्लास्टिक की एक ट्यूब है जो ड्रिल करके अंदर पहुंचाई जाएगी। ड्रिल के औजार और प्लास्टिक ट्यूब को तैयार कर लिया गया है। काम शुरू करने का वक्त आ पहुंचा। हथौड़ा मार ड्रिल से झील की तह में 6 मीटर गहरी खुदाई होगी। मतलूबा मकाम तक पहुंचने के बाद साइंसदान उसे वापस खींचेंगे ताकि पाइप में मौजूद हाल को निकालकर क्रॉस का जायजा लिया जाए। अब तक सब कुछ ठीक जा रहा है। ट्यूब में तय दर तय लगा पत्थर जमा हो रहा है। अब हम इसे लबे नमूनों की सूरत में काट कर तजर्बागाह भेज देंगे जहां इसका मुकम्मल मुआयना किया जा सकेगा। इन नमूनों में झील की हजारों बरस की तारीख के राज पिन्हा है और शायद ये खबर भी है कि ये यादगार कितनी कदीम है। ये बर्न यूनिवर्सिटी के शोबा अर्जियात में एक खूबसूरत कमरे की खुदाई के चंद रोज बाद का मंजर है। अंसल मिट्टी और उनकी टीम प्लास्टिक ट्यूब में मौजूद तय दर तय पत्थरों का बगौर जायजा ले रही है। उन्होंने वाज़ेह तर तहों का पहले ही जायजा ले लिया है। जिस नमूने का हमने जायजा लिया है वो एक 6 मीटर गहरे शगाफ से निकाला गया था। इसकी ऊपरी सतह मौजूदा झील की ऊपरी तह है और नीचे हजारों बरस कबल की उस वक्त की सतह रही होगी। रडार से ली गई तस्वीर के मुताबिक पुरानी तह 3 मीटर बाद शुरू होती है। इसे यहाँ किसी जगह होना चाहिए। हम इस जगह वो मकाम देखना चाहते हैं जहाँ से यादगार की तामीर शुरू की गई होगी। इस तहकीक के लिए हम इसे काट कर इसमें मौजूद नामियाती मादे को तलाश करेंगे और फिर इस नामियाती मादे को रेडियो कार्बन की जांच के तरीके से परखेंगे।
तजुर्बा गाह में प्लास्टिक ट्यूब में मौजूद मवाद के लंबे लंबे कतले काट लिए गए हैं। तय दर तय पत्थरों को एहतियात से अलग कर लिया गया है। खोलिए इसे, शाबाश। अब इसे वापस नीचे रखिए, ठीक है। कोने को सामने रखिए, थोड़ा सा जोर दीजिए, वापस खींचिए ताकि सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। इस स्कैनर से अंदरूनी तय का हूबहू अक्स नजर आता है। इससे नामियाती मादे अलग किए जाएंगे। अगर आप कैमरे को जरा गौर से देखें तो आपको इसमें स्याह निशानात नजर आएंगे। हमारे ख्याल में ये नामियाती मादा है। पौधों की बाकियात मुनासिब मिकदार में है और इससे वक्त का अंदाजा हो सकता है। अब इसे अलग करने के लिए हम ऐसे और नमूने इकट्ठे करेंगे। अगर नामियाती मादे ना मिल सके तो कार्बन टेस्ट से जमाने का तयन करना मुमकिन ना होगा। खुशकिस्मती से माहिरीन अर्जियात ने बोसीदा लकड़ी और पौधों की बाकियात अलग कर ली हैं। हमने कुछ न कुछ निकाल लिया है, ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे पास चंद छोटे और एक बड़ा टुकड़ा ऐसा है जिसे हम कार्बन लैब भेजकर उसकी तारीख के तयन का टेस्ट करा सकें। इन आसार को जांचने के लिए एक बाकायदा निजाम मौजूद है और इसके साथ ही हमारा मवाद भी। सनोक ज़ीदत और इनकी टीम कार्बन के C14 आइसोटोप का बारीक बीनी से मुआयना कर रहे हैं। जहाँ भी कार्बन मुयस्सर हो इसमें C14 निकाला जा सकता है, यानी हर जिंदा चीज में से और जिंदा अशिया के बाकियात में से भी इसकी जांच हो सकती है। आपको जहाँ भी कार्बन मिले C14 भी मिल जाएगा। कार्बन को एक खास तरीके से साफ करके जांच के लिए तैयार किया जाता है। अगर इनके C14 का जायजा मुमकिन हो तो उनकी उम्र भी मालूम की जा सकती है। किसी मवाद के C14 के गलने के अमल का जायजा लेकर इसकी उम्र का अंदाजा किया जा सकता है। हमें एक ताज़ा मवाद के ताज़ा C14 और इसकी हालात के बारे में इल्म है। हम इसे किसी पुराने नमूने से तकाबुल करके इस पुराने नमूने के दर्जे शिकस्त और रीख से इसकी उम्र का अंदाजा कर सकते हैं और ये भी कि ये कितना पुराना है। सैंपल टेस्ट करने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। सिर्फ 400 माइक्रोग्राम मवाद दस्तयाब हुआ है, यानी कि 0.00 ग्राम, लेकिन ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए बहुत है। ये मशीन माल को निहायत छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर देती है, जिससे सिर्फ C14 बाकी रह जाता है। स्नोक ज़ीदात के बकौल इस टेस्ट की यही बुनियाद है। हम इसे यहाँ नीचे जांच सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये मवाद 3400 या 3650 बरस कब्ल मसीह का है, तो अंदाज़न ये मवाद 5500 साल पुराना है। 5500 साल पुराना मवाद, इसका मतलब है कि ये यादगार पत्थर के जमाने की है। माहिरीन ने आसार कदीमा का भी जवाब नहीं। उन्होंने झील की सतह से कीचड़ निकाला और इसमें से चंद पत्थरों को जांचने के लिए सतह आग पर ले आए। माहिर आसार कदीमा एरिस ल्यूजिंगर अपनी दरियाफ्त के बारे में बताते हुए कहते हैं, ब्लॉक में कभी एक नाजुक सी किनारी थी और बहुत कम सामने आने वाली बात यह है कि इस पत्थर में इस नाजुक का कुछ हिस्सा अब भी मौजूद है। अगरचे इसे हटा लिया गया था, लेकिन करीब से देखने पर साफ नजर आता है कि किसी ने कभी यहाँ नेज़े ऐसी चीज मारी थी, और क्योंकि इस निशान की बाकायदा शक्ल है जिससे ये पता लगता है कि ये बाकायदा तैयार करदा औजार या हथियार था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये यादगार की तामीर के दौरान ही हुआ होगा। तहकीकात करने वाले कहते हैं कि इस यादगार के बारे में मजीद हकाइक सामने आने की उम्मीद है। कॉन्स्टेंस झील पर उस यादगार को बनाने वालों से मिलने के लिए हमें माजी में सफर करना होगा, कुरूम वुस्ता से पीछे जाना होगा, सल्तनत रोमा का जमाना तय करना होगा, कब्ल मसीह में जाना होगा और वहाँ से धात का जमाना पीछे छोड़कर पत्थर के जमाने में पहुँचना होगा। ये सफर 5500 बरस पहले के जमाने तक का है।
ऐसे वक्त में जब गालिबन यूरोप की आबादी बहुत कम हुआ करती थी और झील के किनारे पहाड़ियों पर छोटे छोटे घर होते थे, उस वक्त मौजूदा जमाने के बरखिलाफ जवानों की अक्सरियत रहा करती होगी। बहुत कम लोग बुढ़ापे तक पहुंचते होंगे। जिंदगी सख्त और सादा होती होगी। लोग काश्तकारी, गल्ला पानी और शिकार करते होंगे और कबीलों की सूरत में रहा करते होंगे। शरह अमवात के ज्यादा होने का मतलब ये होता होगा कि खवातीन की जो जिंदगी अता करती हैं बहुत कदर की जाती होगी, जैसा कि मिट्टी के इन बर्तनों से जाहिर होता है जिनमें औरत के सीने के उभार दिखाए गए हैं। और दीवार पर नस्ब इस मुजस्मे से भी, जो यूरोप का सबसे कदीम और बड़ा मुजस्मा है, इसमें भी मिट्टी से सीने के उभार बनाए गए हैं। ख्याल किया जाता है कि ये मुख्तलिफ औकात में खवातीन हुक्मरानों की नुमाइंदगी करते हैं। मशहूर जमाना मेरिल भी कॉन्स्टेंस झील के पास ही पाया गया था। इस बात को किसी सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि यूरोप में पत्थर के जमाने में भी जिंदगी मौजूद थी। इस इलाके में कुछ मवाद और अशिया ऐसी दरियाफ्त हुई हैं जिनसे मालूम होता है कि इन्हें तमाम खित्ते से जमा करके लाया जाता है। इनमें तांबा, मिट्टी, पत्थर और जेवर के नमूने शामिल हैं। एक और शय जो यूरोप भर में हुआ करती थी वो संगी मुजस्मे हैं। इंसानी हाथों से बनाए गए बड़े बड़े मुजस्मे, जैसा कि इंग्लिस्तान का स्टोनहेंज और ब्रिटानी का कार्निक है। और इन यूरोप के पास कॉन्स्टेंस झील के अतराफ वाक़ई स्विस स्टोनहेंज भी है। साइंसदान यकीनन ये जानना चाहते हैं कि इन चट्टानों का क्या मकसद था। मुमकिन है कि पत्थर के जमाने के लोग अपने मौसम में सरमा और गर्मा के त्योहार मनाने के लिए उन्हें तामीर करते हों। इन पत्थरों को सूरज के रास्ते में नस्ब किया गया है। ये भी हो सकता है कि वो इन पत्थरों की चोटियों पर अलाव जलाते हों किसी इबादत के लिए। ये अभी तक इस झील के पोशीदा राजों में से एक है। एक और काबिले जिक्र दरियाफ्त नियानदरथल का ढांचा है जो हाल ही में इराक की शयदार गार से मिला है। ये 70,000 साल पुराना है। जिस हालत में ये जमीन में मौजूद था, इससे अंदाजा होता है कि उसे एहतियात से दफनाया गया होगा। बायां हाथ सर की जानिब मोड़ा गया था, जबकि दायां हाथ सीने की तरफ। सर के नीचे पत्थर का एक टुकड़ा रखा गया था। गुज़िश्ता 25 सालों में होने वाली ये बेहतरीन मजबूत तरीन दरियाफ्त है। माहिरीन को उम्मीद है कि इससे उन्हें मज़कूरा मुआशरे के तक़सीम के रस्म रिवाज के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। हमने आपसे फेसबुक पर पूछा था कि आपके ख्याल में आसार कदीमा के माहिरीन 5000 साल कबल के जमाने का क्या दरियाफ्त करेंगे। टॉफल जो इंडोनेशिया से हैं, उनका कहना है कि वो बेकार होने वाले मोबाइल फोन, कंप्यूटर और गाड़ियां दरियाफ्त करेंगे। निकोलस इस बारे में मनफी राय रखते हैं। उनका कहना है कि 5000 साल कबल आबादी यूं भी कम होती थी। इस वक्त में आसार कदीमा के माहिर नहीं होते होंगे। मेक्सिको से अल्फांसो ने मजाकतन कहा है कि उन माहिरीन को वो तमाम मोजे मिलेंगे जो वॉशिंग मशीन में गुम हो जाते हैं। और शेरी का कहना है कि बेकार हो जाने वाले फोन और दीगर अशिया के साथ साथ उन्हें प्लास्टिक के बहुत ज्यादा नमूने हासिल होंगे। दरहकीकत आज जो हम प्लास्टिक बना रहे हैं, ये हजारों बरस तक बाकी रहने के काबिल है। हर साल 8 मिलियन प्लास्टिक समंदर बर्द हो जाता है और फिर समंदरी हरकत से एक एक जगह जमा होता रहता है। ये समंदरी हरकत जमीन पर जिंदगी का वजूद बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये हरकत होती कैसे है? समुद्री करंट कैसे बनता है? समुद्र में वसी दरिया की मानिंद पानी कैसे चलता रहता है जो लहरों के मद्दोजर से तकसीम होता रहता है। ऊंची लहर किनारे की तरफ जाती है जबकि छोटी लहरें इससे दूर भागती हैं। समुद्र में बनने वाले करंट तेज आंधियों से चलते रहने से वजूद पाते हैं। मजीद ये कि दर्जे हरारत में आने वाली तब्दीलियां भी इन करंट्स पर असरअंदाज होती हैं। ठंडा और नमकीन पानी गर्म और कम नमकीन पानी के मुकाबले में भारी होता है, इसलिए वो समुद्र की तह में डूबता है। पानी की रफ्तार साहिली इलाके के जोग्राफिये पर मुनहसिर होती है।
दर्जे हरारत और पानी की नमकीनी से बनने वाला ये करंट आलमी राब्ते का एक बेल्ट भी तैयार करता है। इस निजाम से दुनिया भर में समुद्री पानी पहुंचता है। ये समुद्री करंट माहौलियात पर ज्यादा असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे हेम्यूल्ट करंट की वजह से अंटार्कटिका से हयातियात से लबरेज ठंडा पानी साल के 6 माह तक गैलापैगस जजायर तक आता रहता है, जिससे छोटी जानदार अशिया और काई वगैरह को खुराक मिलती रहती है, जिससे खुराक की चेन की बुनियाद बनती है और समुद्री मछलियां और दीगर हयातियाती चीजों को खाने के लिए छोटी जानदार अशिया और काई दस्तयाब होती है। ये खुराक पाने वालों में इगुआना भी शामिल है, जो वाहिद छिपकली है जो समुद्र में जिंदगी गुजारती है। इसी असना में खुश्की पर जिंदगी कठिन होती है, बारिश मुश्किल से कभी कभार होती है। जंगली हयात बशमूल गैलापागोस कछुओं को खुराक की तलाश में बहुत सफर करना पड़ता है, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में खुराक वाफिर मकदार में दस्तयाब होती है। ये उस वक्त होता है जब मगरिबी मौसम आ जाता है और इसमें पानामा का करंट गर्म पानी लाता है जो इतनी हयातियात नहीं लाता। उस वक्त समुद्र के आबी जानवरों को खुराक की तलाश में सफर करना पड़ता है और वो निस्बतन ठंडे पानियों का रुख करते हैं। लिहाजा चूंकि माहौलियाती तब्दीलियां समुद्री करंट को मुतासिर कर रही हैं, इससे मालूम होता है कि इस पर मुफस्सिल तहकीकात होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि समुद्री करंट समुद्री जिंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। ज़ेरे आब हयात के लिए ऑक्सीजन से लबरेज ठंडे पानी का करंट कलीदी हैसियत रखता है, लेकिन कई मरतबा मकामी करंट में एक जिन्स की बहुतात की वजह से खराबी आ जाती है, मसलन किसी किस्म की समुद्री काई। लेकिन मेक्सिको में एक मौजूद ने इसके इस्तेमाल का एक तरीका दरियाफ्त किया है। भूरे रंग की समुद्री काई मेक्सिको के साहिलों पर मौजूद है, माहौलियात और सयाहत की सनत के लिए तबाकुन है, लेकिन उमर वास्कोस के लिए ये एक मुफ्त में दस्तयाब तामीराती माल है। हम सारा पानी निकाल कर इसका गंद साफ कर लेते हैं। ये अमल हम उस वक्त तक जारी रखते हैं जब तक समंदरी काई इससे अज खुद नामियाती मिट्टी बरामद न कर ले। उमर अपने तर्ज की ईंटें तैयार करते हैं जिसमें 60% समुद्री काई होती है। कई मिलियन टन माइक्रो इंजी साल भर में पोकाटन के जजीरे नुमा में जमा हो जाती हैं। पिछले 10 बरस से ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया था। इंसानी अमल से वजूद में आने वाली आलूदगी से ये मसला पैदा हुआ है। इन तमाम कीमियाई मादों और सफाई और धुलाई में इस्तेमाल किए जाने वाले मादों के बायस जो बिलाकर समंदर बुर्द हो जाते हैं, इनसे एलजी को खुराक मिलती है और बढ़ते रहने का मौका भी। हर रोज वेरोनिका और इनकी टीम काई जमने के वक्त साहिल की सफाई करती है, जिससे सल्फर का तेजाब और खतरनाक गैस खारिज होती हैं, जो समुद्री हयात के लिए खतरनाक हैं। उमर जैसे लोगों के काम में मदद करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ समंदर काई जमा करते हैं और फिर उन्हें दे देते हैं जो उसका कुछ कर सकें। बुनियादी बात ये है कि ये काई माहौल को खराब न कर सके। वेरिकोएस और इनकी टीम समंदरी काई को कीचड़ और दीगर नामियाती फसलों में पैरों से चलाती है ताकि वो सख्त हो जाए। एक घर तामीर करने के लिए 20 टन समंदरी काई की जरूरत पड़ती है। उमर दरअसल एक बागबान है जिसने खाद बनाने के लिए समंदरी काई का शुरू में इस्तेमाल किया था। बाद में उन्हें ख्याल आया कि इससे तामीराती काम भी किया जा सकता है और ये भी कि उनकी बनाई हुई ईंटों से माहौल खराब नहीं होगा। अपने इस तस्वर के बाद से मैं मुस्तकिल इस काम को बेहतर बनाने में मशगूल था। अब हम पेटेंट हैं और बेहतरीन नामियाती ईंटें तैयार करते हैं। वेस्कोस ने ये घर एक ऐसे खानदान को दिया है जिनका अपना घर आतिशज़दगी में खत्म हो गया था। मकामी आबादी का 1/3 हिस्सा बहुत गरीब है। इन गरीब लोगों में मोनिका गोम्स और इनके 6 अदद बच्चे भी शामिल हैं। ये मकान हमारे पुराने मकान के मुकाबले में ठंडा भी है, इसमें गर्मी कम लगती है। अब तो मेरे बहुत से हमसाए भी ऐसा मकान बनाना चाहते हैं। सरगासम ईंटें सीमेंट के मुकाबले में कम कीमत और लकड़ी के मुकाबले में मजबूत हैं। इनमें दिलचस्पी